Hi everyone, welcome to another video, and in this video we'll be talking about what exactly are the financials when you apply to an institute like IIM Indore. So this is with regard to if you want to leave after 3 years या you choose to stay for 5 years. इसमें हम बात करेंगे कि what exactly are the loan procedures, what is the amount you get, what time you get to pay into, क्या interest payment रहेंगी, क्या क्या रहेगा, तो हम properly in length discuss करेंगे. And this video is in context if you take a loan from the SBI branch which is in campus. So this video is in that context, and everything which I say is with regard to that. So let's see. First of all, talking about eligibility. For you to be eligible for the SBI loan, you have to be an Indian national and you have to be admitted in the IPM program. Just two simple things. And you don't have to go and actively apply. When you get selected, you'll get a mail from the SBI branch itself that you are eligible for a loan, and if you want this need-based loan, you can apply for it. Second thing is the loan amount. What exactly is the loan amount? It's around 40 lakhs. 40 lakhs which is spread over 5 years. It includes a lot of things. What all it includes? It includes your tuition fee, your hostel fee, your mess fee, a caution deposit which is approximately 10% of the total tuition fee. Then we have a provision for you to purchase a laptop or a computer if you need one. Then we have expenses on books, stationery, etc. This is covered, and we have expenses made on student exchange program. So IIM Indore has a option for you to go on a student exchange, which is at the end of second year, third year, and in the PGP as well. So that is also covered in your loan amount, which is 40 lakhs, and this is also a insurance premium, which is covered in the loan. Now talking about interest rate. Interest rate is 6.7% right now. It may be flexible. What do you mean by flexible? So IIM Indore SBI branch gives a loan which is 6.7 plus 5% floating. Floating is that if RBI changes some rates or something, SBI is liable to change the rate of interest from 6.7 to 7 point something. This is done. We have zero security, zero margin, zero guarantee, zero processing fee, and zero prepayment facility. If you choose to settle up your loan at a time earlier than given by the bank, you can do that. A co-applicant has to be your parent or your guardian, a guardian which you choose or a parent. Now, commitment fee. Commitment fee, everything. This is, for example, if you buy something or laptop or something, you have to give the bill of that laptop 6 months before after the purchase, within the 6 months period. तो वो आपने कर दिया. Now moratorium. When you complete your degree at the end of 5 years, you get 1 year moratorium period. What is moratorium period? In that 1 year, you don't have to pay the loan. Your interest rate won't be compounded. It will be simple interest rate which is calculated for the first 5 years. So because this is done, so that you earn some sufficient amount for your living and you can start paying from the next year. A lot of people choose to pay the loan in less than 15 years time, कि 10 साल में या 8 साल में, जैसे भी बहुत सारी वजह होती हैं. कुछ लोग सोचते हैं कि जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाता है तो मैं एक बर्डन फ्री हो जाऊंगा. बहुत लोग एक है मुझे थोड़ा टैक्स बेनिफिट मिल जाता है. बहुत सारे लोगों के रैशनल होते हैं. ये क्या पेमेंट करने पे हमको क्या बेनिफिट मिलता है हम इन लेंथ अभी डिस्कस करेंगे. एवरीथिंग इज़ ऑटोमेटेड. यू जस्ट हैव टू गो एंड टेल टू द बैंक दैट फी पेमेंट आ रहा है या आई एम इन रिक्वायरमेंट ऑफ दिस अमाउंट, तो दे विल क्लियर इट ऑफ. Now, student exchange. If you are selected for the student exchange program, you can go to the bank with relevant documents. Yes, I have been selected, and they'll sanction the tuition fee and everything which you will pay there. Your personal expenses, for example, if you do shopping, that will not be covered by the bank, but your academic expenses will be covered by the bank. Now, let's talk about what are the documents required. So first of all, there is a application form which the bank sends. So there are all the details, ki what your name, your photograph, mother's name, parents' names, everything. Now there is, after that, there is a affidavit. What do you mean by an affidavit? An affidavit is nothing but again a formal notary public stamped document which states everything out, ki income and everything. So that needs to be done. AL statement. AL statement is every financial instrument, everything which your family owns. Saving account में कितना है, if you have any land, your LIC post office, everything which you have, loan कितना है, कितना amount देना है, everything which you own or you owe, you have to write in that. So this majorly are the steps of you applying to a loan.
नाउ लेट्स लुक एट एन एक्सेल शीट जहाँ पे हम देखते हैं कि कितना लोन अमाउंट करने से कितना क्या रहेगा. लेट्स गो. हे एवरीवन, वेलकम बैक. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एक्चुअल नंबर्स कि कितना पेमेंट रहेगा, क्या रहेगा, कितने महीने में मैं कर सकता हूँ, इंटरेस्ट रेट वगैरह लगा के अगर मैं इंटरेस्ट पे कर देता हूँ, नहीं कर देता हूँ, क्या रहेगा प्रॉपर एक हम एक्सेल शीट के थ्रू डिस्कस करते हैं. सो लेट्स सी. तो इस एक्सेल शीट में सबसे पहले मेरे पास है द लोन अमाउंट. तो अगर हम ये मान लेते हैं, जो हमने माना है कि हम 40 लाख रुपए पूरा कंज्यूम कर लेते हैं विद इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स, और इंटरेस्ट रेट हमारा है 6.5 और टेन्योर हमारा है 15 साल. तो 15 साल के हिसाब से अगर मैं हर महीने 34,000 रुपये देता हूँ तो मेरा ये इंटरेस्ट जो लोन का वो है वो ख़त्म हो जाएगा. आई विल बी फ्री ऑफ लोन. नाउ बहुत लोग क्या करते हैं कि कोशिश करते हैं इस लोन को जल्दी से जल्दी ख़त्म करें. तो मान लेते हैं इसको हम 12 साल कर देते हैं, तो ये हो जाता है हमारा 40,000. ठीक है. तो अब 40 लाख रुपए 5 साल में मैंने खर्च करे और 15 साल लगे, मुझे 12 साल लगेंगे 40,000 रुपये के हिसाब से पूरा रीपेमेंट करने में. और इसमें मैं इंटरेस्ट पेमेंट कर रहा हूँ 17 लाख रुपए का. तो इसका कुछ और क्या हो सकता है. तो बहुत लोग क्या सोचते हैं कि मैं यहाँ से इंटरेस्ट पेमेंट शुरू कर देता हूँ पहले साल से, पहले टर्म से, पहले महीने से. तो जैसे कि आप यहाँ हैं, ये टर्म वाइज एक शीट है. ये सारे नंबर्स अभी के फ़ी स्ट्रक्चर के हिसाब से हैं, अभी के जो करंट रूल्स हैं, जो भी करंट फ़ी स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से. तो हमने उस हिसाब से बात करी. अब हमने देखा कि पहले टर्म में मैंने फ़ीस दी 1,48,000. ठीक है जी, मैंने 1,48,000 दे दी. अब इस पर मेरा इंटरेस्ट आ रहा है 853 रुपीज़. 853 रुपीज़ मैंने आया इंटरेस्ट, और मैंने सिर्फ इंटरेस्ट पे किया, मैंने प्रिंसिपल पे नहीं किया. तो 853 इंटरेस्ट आया, 853 मैंने इंटरेस्ट पे कर दिया. मेरा कितना बचा प्रिंसिपल, इतना. ऐसे करके अगले महीने आया 853, मैंने फिर 853 दे दिया. अगले महीने दोबारा 853, मैंने फिर 853 दे दिया. ऐसे करते 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 हर महीने का इंटरेस्ट आता रहेगा. तो अगर हम देखें कि ये इंटरेस्ट जो आ रहा है आपका, ये आ रहा है अप्रॉक्सीमेटली 1,05,000 रुपये. जैसे कि आपको मैं दिखा देता हूँ, ये सम करते हैं अगर हम, इंटरेस्ट ड्यू इंटरेस्ट पेड बिल्कुल सेम है. ये आ रहा है 1,05,000 रुपये. अब इसको मैं सोचता हूँ कि अगर मैं 27 महीने में भर रहा हूँ तो मुझे लगभग 4,000 रुपये पर महीने देने हैं इंटरेस्ट में. ठीक है. अब मैं 4,000 रुपये कहाँ से लाऊँ. तो अगर आप इंदौर में एडमिशन लेते हैं तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि आपको फर्स्ट ईयर के मिड तक, एंड तक एक इंटर्नशिप मिल जाए. अब इंटर्नशिप में क्या है, आपको अलग अलग रोल्स ऑफ़र होते हैं, बिज़नेस डेवलपमेंट के, वो जो भी है, तो उसमें आपको पैसा मिलता है. नाउ पैसा कहीं से 5,000 से लेके 15,000 20,000 तक रेंज कर सकता है, डिपेंडिंग ऑन आपका स्किल सेट क्या है, आप कितना टाइम डिवोट करते हो, आप कितने सीरियस हो वो लेके. तो मतलब आप यहाँ पे आके शुरू कर सकते हो अर्न करना और अपना ये इंटरेस्ट पेमेंट भरना. और ये पहले में 853 है, तो आप थोड़ा 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 करके कर सकते हो. ये जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा, हो सकता है आप भी अपने वहाँ ग्रो करो तो आपको और अमाउंट मिले, आप और पेमेंट ये आराम से कर सको. अब बहुत लोग क्या करते हैं कि IPM ख़त्म होते ही, माने कि 3 साल ख़त्म होते ही वो छोड़ देते हैं. क्यों छोड़ देते हैं? वो ये सोच के छोड़ देते हैं कि मैं कोई बेटर IIM चला जाऊँगा, या मेरे लिए मनी बहुत बड़ा फैक्टर है तो मैं FMS दिल्ली चला जाऊँगा, या मैं किसी ऐसे कॉलेज चला जाऊँगा जहाँ मेरा थोड़ा कम खर्चा हो. तो इसलिए चलो हम मानते हैं कि आपने 3 साल बाद छोड़ दिया. अब आपको 17,40,000 रुपये का लोन पेमेंट करना है. तो 17,40,000 रुपये मैंने माना, ये तो एक ज़ीरो कम रह गया, ये 17,40,000 रुपये. अब ये अमाउंट कम, तो साल भी कम कर देते हैं, ये मैंने माना 8 साल में. तो मैं 30,000 रुपये के हिसाब से 8 साल में अपना ये लोन पेमेंट ख़त्म कर दूँगा, जिसमें मुझे 4,80,000 रुपये लगभग इंटरेस्ट देना है, और बाकी प्रिंसिपल तो 17,40,000 है. ठीक है जी. तो अब क्या, अब अगर हम इसमें देखते हैं कि यहाँ पे हमारा आके फ़ीस हो जाती है लगभग डबल. मतलब जितना आपका 3 साल में खर्च होगा उतना ही आपका लगभग आगे के 2 साल में खर्च होगा, बल्कि उससे थोड़ा सा ऊपर ही होता है कि. तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो 34 लाख रुपए 5 साल में खर्च करते हैं हम, अगर हम इंटरेस्ट पेमेंट करते रहते हैं हर महीने. तो मैंने हर महीने इंटरेस्ट पेमेंट किया, सब किया, तो मेरा एंड में बचता है लगभग 34 लाख.
अब मैं ये अगेन 7% माना है, 6.5% माना है के हिसाब से मैं 8 साल में पेमेंट करता हूँ, तो मुझे ओके सॉरी हाँ, तो ये मुझे 45,513 रुपीज़ देना है 8 साल के हिसाब से 6.5%। अब अगर हम दोबारा देखें कि 40 लाख जब था ये अमाउंट, तो हमको देने थे 53,000, तो मतलब 8,000 रुपये पर महीने बचते हैं अगर आप अपना इंटरेस्ट रिपेमेंट अभी से शुरू कर देते हैं, जो कि पॉसिबल है, बच्चे करते हैं और बच्चे खुद करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कैसे करूँगा, ये करूँगा, इट इज़ मैनेजेबल प्रोवाइडेड अगेन आप यहाँ के डेडिकेटेड हैं, आप टाइम देते हैं प्रॉपर, हर चीज़ आप अपने टाइम से कंप्लीट करते हैं, आप एक्टिव हैं हर चीज़ में, तो यू कैन डू इट। ठीक है, तो हमने ये डिस्कस कर लिया कि 34 लाख रुपए अगर हम लेके चलते हैं, एक ज़ीरो ज़्यादा हो गया है, ये 34 लाख रुपए लेके अगर हम चलते हैं तो हमको 45,000 देने। अब ये अमाउंट सुनने में बहुत ज़्यादा लग रहा है, बट अगर यू कैलकुलेट कि आप सपोज़ मान लो यहाँ के टॉप एवरेज स्टूडेंट्स में हो और आपकी प्लेसमेंट अगर लगती है अराउंड 25 से 30 लाख के बीच में, तो यू कैन ईज़िली मैनेज दिस, और आप ग्रो करते हो टाइम के साथ, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो दिस इज़ मैनेजेबल। तो देर आर अदर बैंक्स ऑल्सो विच प्रोवाइड लोन्स या जो करती हैं, तो बट अगेन जितना मोटा स्ट्रक्चर है वो यही रहता है, वहाँ थोड़ा बहुत इंटरेस्ट का फ़र्क पड़ जाता है या कुछ है, तो दैट कैन बी मैनेज्ड। ओके, सो आई लिंक दिस शीट इन द कमेंट सेक्शन बिलो, तो आप डाउनलोड करके यू कैन प्ले अराउंड विद द नंबर्स। बाकी मोस्टली दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन।